اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کریمہ سعدی کے 23ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کے عزت اور اس کی توفیق سے 22 لیکچر ہم کریمہ سعدی کے پڑھ چکے، آج 23ویں لیکچر میں حاضر ہیں، اور جو ہم بیان پڑھ رہے تھے اس کا عنوان ہے در صفت عدل۔ اس کے پہلے 3 اشعار آپ سماعت فرما چکے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اگلے 3 اشعار پڑھیں گے۔ توجہ کے ساتھ آپ اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ آج کا پہلا اور مجموعی طور پر یہ چوتھا شعر ہے۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں: چون نو شیر واں عدل کرد اختیار، چون نو شیر واں عدل کرد اختیار، کنوں نام نیکست ازو یادگار، کنوں نام نیکست ازو یادگار۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب نوشیروان نے عدل اختیار کیا، جب نوشیروان نے عدل اختیار کیا تو اب تک اچھا نام اس کی یادگار ہے، تو اب تک اچھا نام اس کی یادگار ہے۔ یہاں پہلے آپ لفظی ترجمہ سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ العزیز اس کی شرح بیان کرتے ہیں۔ نوشیرواں، چو کا معنی جب نوشیرواں یہ ایک بادشاہ کا نام ہے، ایران کا ایک مشہور بادشاہ جس نے اپنی سلطنت میں نظام عدل و انصاف کو رائج کیا۔ نوشیرواں، عدل کا معنی انصاف، کرد کا معنی کیا، کردن مصدر سے واحد غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف کا صیغہ ہے۔ اختیار کا معنی اختیار کیا یا رائج کیا یا پسند کیا، اور اسی طرح قائم کیا، ان معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کنوں، یہ اصل میں لفظ اکنوں ہے، اکنوں، اکنوں کا معنی اب تک، یہ اکنوں کا مخفف ہے کنوں۔ نام کا معنی نام، نیکست نیک ہے یا اچھا ہے۔ ازو، یہ اصل میں ہے از او، اس کی یا اس سے۔ یادگار کا معنی یادگار۔ تو اب اس شعر کو سمجھیں۔ چو نوشیرواں عدل کرد اختیار، جب نوشیرواں بادشاہ نے عدل اختیار کیا اور عدل کے نظام کو رائج کیا اپنی سلطنت میں، چو نوشیرواں، جب نوشیرواں بادشاہ نے عدل کرد اختیار، اپنی سلطنت میں عدل کو اختیار کیا، عدل کو، نظام عدل کو رائج کیا یا نافذ کیا، تو پھر کنوں نام نیکست ازو یادگار، تو اب تک اچھا نام اس کی یادگار ہے۔ اچھا نام یعنی اب بھی اس کو لوگ اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے 100 سال گزر جانے کے بعد آج ہم بھی نوشیرواں بادشاہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس نے اپنی رعایا میں، اپنی سلطنت میں، اپنی مملکت میں نظام عدل کو، نظام انصاف کو رائج کیا، اور ایسا نظام عدل رائج کیا کہ تمام رعایا اس کی گرویدہ ہو گئی، اور حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اب اس بادشاہ کا نام اپنی کتاب میں ذکر کیا، اور آج ہم بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس کے نظام عدل کی وجہ سے، کہ جب اس نے نظام عدل کو رائج کیا تو اس کی شہرت اچھی لوگوں کے درمیان پھر مشہور ہو گئی، اور لوگ اس کی مدد کرنے لگے، لوگ اس کو سپورٹ کرنے لگے، تو لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے اور اس کے لیے دعائیں کرتے، اور اس کی اس طرح سلطنت مضبوط ہوئی۔ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ، لوگوں کی مدد کے ساتھ، لوگوں کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے اس کی سلطنت کو دوام ملا، اور وہ اچھی شہرت کا مالک بنا۔
नौशेरवा ये इंतहाई अदल पसंद इंसान था जिसने अपनी सल्तनत में निज़ाम अदल को राइज किया। एक दफ़ा उसने कुछ दानिशवरों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि अच्छे बादशाह की अलामत क्या है, अच्छे बादशाह की अलामत क्या है। तो फिर किसी ने कहा कि अच्छा बादशाह वो है जो सखी हो, किसी ने कहा कि अच्छा बादशाह वो है जो अपने गुस्से में मोतदिल हो, किसी ने कहा कि अच्छा बादशाह वो है जो अपने मामलात में आदिल हो, किसी ने कहा कि अच्छा बादशाह वो है जो गरीबों का हमदर्द हो, किसी ने कहा कि अच्छा बादशाह वो है जो खुश कलाम हो, अच्छी गुफ्तार का मालिक हो, किसी ने कहा कि अच्छा बादशाह वो है जो खुदा तरस हो, लोगों के साथ नरम दिली वाला मामला करे, नरम दिली वाला मामला करे, खुदा तरस हो तो वो अच्छा बादशाह है। इसी तरह वो बादशाह अच्छा है जो इल्म नवाज हो, इल्म दोस्त हो, उलमा की कदर करने वाला हो, अहले इल्म की कदर करने वाला हो, तो वो अच्छा है। तो जब ये नौशेरवा बादशाह ने सुना तो फिर उसने कहा कि बस मेरी निजात के लिए यही काफ़ी है, मेरी निजात के लिए यही काफ़ी है। तो अदल एक ऐसा किला है, ऐसा मजबूत किला है कि जिसको कोई आग जला नहीं सकती और कोई मंजनीक उसे गिरा नहीं सकती। अदलो इंसाफ ऐसा एक मजबूत किला है। इसी तरह ये है नौशेरवा के अदलो इंसाफ की बरकत कि आज भी उसका नाम अच्छे लफ्ज़ों से जिक्र किया जाता है। हज़रत सैयदना शेख शरफुद्दीन सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह अगले शेर में आप फरमाते हैं, जे तासीर अदलस्त आराम मुल्क के अज अदल हासिल शवद काम मुल्क, जे तासीर अदलस्त आराम मुल्क के अज अदल हासिल शवद काम मुल्क। आप फरमाते हैं कि इंसाफ के असर से मुल्क में आराम होता है, आराम यानी अमन होता है। इंसाफ के असर से यानी इंसाफ की तासीर ये है कि जिस मुआशरे में इंसाफ होगा, अदल होगा, इंसाफ होगा, तो उसका असर ये होगा कि उस मुआशरे में अमन होगा, आराम होगा, वो मुल्क खुशहाल होगा। फरमाते हैं जे तासीर अदलस्त आराम मुल्क, इंसाफ के असर से ही मुल्क में आराम होता है कि अज अदल हासिल शवद काम मुल्क, और अदल से ही मुल्क के मकासद हासिल होते हैं, अदल से ही मुल्क के मकासद हासिल होते हैं। इसका पहले लफ्ज़ी तर्जमा आप समात फरमा लें, फिर इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम इस शेर को समझते हैं। जे का माना से, तासीर का माना असर, तासीर का माना असर, जे तासीर अदल, अदल के असर से, जे तासीर अदल, अदल के असर से, आराम मुल्क, मुल्क में आराम होता है यानी अमन होता है, कि अज अदल के अदल से हासिल शवद, हासिल होता है, शवद ये शुदन मस्दर से फेल मुज़ारे वाहिद गायब का सीगा है, शवद होता है। काम मुल्क, मुल्क का मकसद, तो मुल्क का मकसद क्या होता है कि उसकी रआया खुशहाल हो, रआया खुशहाल हो, महफूज हो, उन्हें रहने के लिए अच्छा एक मकान मिले, उन्हें खाने के लिए अच्छी खुराक मिले, उन्हें पहनने के लिए अच्छा लिबास मिले, और वो तरक्की पजीर मुल्क बने, और वो सल्तनत तरक्की पजीर हो, वो अकवाम में और दुनिया में एक नुमाइंदा कौम बनकर उभरे। तो मुल्क के मकासद यही होते हैं, मुल्क के मकासद यही होते हैं। तो आप फरमाते हैं जे तासीर अदलस्त आराम मुल्क, अदल की तासीर से मुल्क में आराम होता है, मुल्क अमन का गहवारा बनता है। अदलो इंसाफ का निज़ाम राइज करने के साथ मुल्क में, सल्तनत में आराम होता है, अमन होता है कि अज अदल हासिल शवद काम मुल्क, और अदल से, क्योंकि अदल से ही, इंसाफ के साथ ही मुल्क का मकसद हासिल होता है। जो मुल्क का
सल्तनत का मकसद होता है वो निज़ाम अदल से ही हासिल होता है। किसी भी मुल्क में अगर सुकून और आराम है तो वो अदलो इंसाफ के सबब से है। जिस मुआशरे में अदलो इंसाफ ना हो वो मुआशरा तबाह हो जाता है। अदलो इंसाफ ना होने का मतलब ये है कि उस मुआशरे में जुल्म का निज़ाम राइज है। अगर अदलो इंसाफ नहीं तो समझ लें कि उस मुआशरे में जुल्म का निज़ाम राइज है। तो जुल्म की हुकूमत कभी भी दवाम हासिल नहीं कर सकती। जुल्म की सल्तनत और जालिम बादशाह कभी भी दवाम हासिल नहीं कर सकता। वो अपने मातहत लोगों को दबा तो सकता है, खामोश तो करवा सकता है, अपने जोर के बलबूते पर, अपने जुल्म के बलबूते पर, मगर अपने उनके दिलों में अपनी मोहब्बत कायम नहीं कर सकता। मोहब्बत कब कायम होगी कि जब वो अदल और इंसाफ के निज़ाम को राइज करेगा। उस वक़्त फिर राया उसके लिए दुआ करेगी और उसकी सल्तनत के लिए दवाम होगा। राया अदल इंसाफ से खुश होती है। जब राया खुश होगी तो लामहला उसकी सल्तनत को दवाम हासिल होगा। चलते हैं, उम्मीद है कि अच्छे तरीके से आज का ये शेर भी आपने समझ लिया होगा। दोबारा फिर कर लेते हैं। जे तासीर अदल अस्त, अदल की तासीर से, अदल के असर की वजह से, जे तासीर अदल अस्त आराम मुल्क, अदलो इंसाफ के असर की वजह से मुल्क में आराम होता है, मुल्क में अमन होता है। कि अज अदल हासिल शवद काम मुल्क, क्योंकि अदलो इंसाफ के साथ ही मुल्क के मकासद हासिल होते हैं। चलते हैं अगले आज के तीसरे और मजमूई तौर पर छठे शेर की तरफ। जहां रा बइंसाफ आबाददार, जहां रा बइंसाफ आबाददार, दिले अहले इंसाफ रा शाददार, दिले अहले इंसाफ रा शाददार। इस शेर में हजरत सैयदना शेख शरफुद्दीन सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जहां को इंसाफ के साथ आबाद रख, जहां को इंसाफ के साथ आबाद रख, इंसाफ चाहने वालों का दिल हमेशा खुश रख, इंसाफ चाहने वालों का दिल हमेशा खुश रख। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा आप समात कर लें, फिर इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम इस शेर को समझेंगे। जहां रा का माना जहान को, बा इंसाफ, इंसाफ के साथ, बा इंसाफ, इंसाफ के साथ, आबाददार, आबाद रख। दार ये दाश्त मस्जिद से फेले अमर वाज हाजिर का सीगा है, दार तू रख। दिले अहले इंसाफ, इंसाफ वालों का दिल, मुराद यानी इंसाफ चाहने वालों का दिल। शाददार खुश रख, शाद का मना खुश, दार का मना रख, शाददार खुश रख। तो अब दोबारा इस शेर को समझे। जहां रा ब इंसाफ आबाददार, अहले दुनिया को इंसाफ के साथ आबाद रख। जहां रा जहान को यानी दुनिया को या अपनी सल्तनत को, ब इंसाफ आबाददार, इंसाफ के साथ खुश रख, आबाद रख। दिले अहले इंसाफ रा शाददार, और अपनी राया का दिल, जो इंसाफ चाहने वाले हैं उनका दिल खुश रख। दिले अहले इंसाफ रा शाददार, और इंसाफ चाहने वालों का दिल खुश रख। इंसाफ कौन चाहता है? लामहला मजलूम इंसाफ चाहता है, जालिम तो इंसाफ नहीं चाहता। जालिम तो चाहता है कि जुल्म का निज़ाम जो है वही गर्म रहे और मैं जुल्म करता रहूं और अपने मकासद हासिल करता रहूं। तो मजलूम चाहता है कि इंसाफ का निज़ाम राइज हो, कमज़ोर चाहता है कि इंसाफ का निज़ाम राइज हो, ताकि अगर कोई उसके साथ कोई ज़्यादती करे, कोई जुल्म करे तो फौरी तौर पे कानूनी गिरफ्त हो और उसको किसी भी जालिम के जुल्म के पंजे से छुटकारा हासिल हो। तो मजलूम को, जब मजलूम जो इंसाफ चाहने वाला है, जब उसको इंसाफ फराहम होगा तो लामहला उसके दिल से दुआ निकलेगी बादशाह वक्त के लिए, यूं उसकी सल्तनत को दवाम हासिल होगा।
اس لیے جو بھی اپنی سلطنت کو دوام دینا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنی سلطنت میں، اپنے ملک میں نظام انصاف کو رائج کریں۔ امید ہے کہ اچھے طریقے سے آج کا سبق بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے۔ اگلے لیکچر میں ہم اس عنوان کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔